So, Dhruti, scalar product. We had done a bit of the background last time. So, in vectors, you'll have two kind of products. One would be the scalar product. The other would be the vector product. So, scalar product, how it is written? It is written like this: A dot B, A vector dot B vector. So that is why it is called dot product also. Vector product is A cross B. So at times it is called cross product also. Any doubt till here? No, sir. There are few things that we can, understand even if even if we don't know the details of this. So the first thing that you need to remember is that in scalar product, when you take two vectors. So for example, last time we had discussed that if I take a force vector and I take a displacement vector, force vector, displacement vector, I do a dot product. The answer that I get, which is work, this answer is a scalar quantity. Have I made myself clear? भाई से भी समझ आया? जी समझ. So in scalar product, Dhruti, you will take a vector, you will take another vector, you will do some mathematical manipulation that we will understand. We will understand the formula, but what you need to understand very clearly is कि scalar product का जो result होता है, whatever the result of a scalar product is, it is a vector quantity. Dhruti, are we clear? Vector or scalar? I'm sorry, is a scalar quantity. ये चीज, Okay. so ये चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कभी भी मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ. So I would have a vector A, some random vector A. There would be another vector B. जो भी आपका रिजल्ट आएगा, that would be a scalar quantity. What is a scalar quantity? Scalar quantity is that it would just be a number. So for example, 27 is a number. Have I made myself clear, Dhruti? Yes. तो कोई भी आप, you are experienced enough now to understand that this 2i plus 3j minus k, this is one vector. अभी ये वेक्टर आपने लिया एंड देन यू टेक अनदर वेक्टर 3i minus j plus k. अब इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट लगाया तो डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोल दिया जाता है. सो you do I'll tell you the formula, don't worry about the formula, but what I'm trying to tell you is कि जो भी आंसर आना चाहिए that should be some number. वो एक नंबर होगा. It can't be another vector. Have I made myself clear? Yes. तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर कभी वेक्टर नहीं होगा, हमेशा ना एक नंबर आएगा. एंड दैट वेक्टर, दैट नंबर implies that it is a scalar quantity. So for example, in our case, if I take this force vector and I do a dot product, मैं displacement के साथ dot product करता हूँ, तो F dot D, ये वर्क जो बनेगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. भाई से भी समझ आ गया? जी. Even before we go to the nitty gritty, we should understand this. अभी वेक्टर प्रोडक्ट पे आइए. वेक्टर प्रोडक्ट में what we should understand is that we are taking a vector product. So let us assume, हमें quantities का पता नहीं, but just assume कीजिए, this is some vector, this is another vector. अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, you will always get another vector. So what I'm trying to tell you is that if there is a vector A and I do a cross product with vector B, the answer would always be a vector quantity. Ms. Dhruti, are we clear? Yes. फिर like dot product में what exactly happens in dot product? Is it are both the terms like scalar ki vector? Yeah, that is a good question. That equation, yeah. Yeah, that is a good question. देखिए, one thing that you need to remember is that आप vector products कर रहे हैं, vector products. तो कहने का मतलब, that is why your answer is good. Always remember, this would be a vector, this would be a vector, but
द आंसर वुड बी अ स्केलर. वेक्टर क्वांटिटी में दिस वुड बी अ वेक्टर, this would be a vector, and the answer would be a vector. Have I answered your correctly? Yes. Yes. तो आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि आप किसका प्रोडक्ट करेंगे. ये याद रखिए कि जब आप प्रोडक्ट लेंगे, वो प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा दो वेक्टर्स ही लेंगे, बट वो वेक्टर्स को लेके आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं. स्केलर ऐसे मैंने क्वांटिटी लिख दिया, वेक्टर प्रोडक्ट लिख देता हूं. प्रोडक्ट, आप जो अ, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन दो वेक्टर्स पे कर रहे हैं. एक ऑपरेशन में जो आंसर है वो स्केलर आता है, और दूसरे ऑपरेशन में जो आंसर है वो वेक्टर आता है. आर वी क्लियर टिल हियर? Yes. तो अगर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने गलती से, आप भूल गए, कंफ्यूजन होगी, तो आपने स्केलर प्रोडक्ट किया और आपका आंसर वेक्टर आ गया, तो आप गलत कर रहे हैं. उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट किया और वेक्टर प्रोडक्ट में आपका सिर्फ एक नंबर आ रहा है 25, तो आप कहीं गलती कर रहे हैं. मेरी बात समझ आ गई? हाँ हाँ. अब अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, वो भी आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी देर में वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल वर्क है. अब जो वर्क है वो स्केलर है. तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये जहां से भी आई होगी, अगर ये वेक्टर से आई है, फिजिक्स में अगर ये वेक्टर से निकली है, तो देर वुड बी सम वेक्टर एंड देर वुड बी अनदर वेक्टर. ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा. उसी तरह इफ आई से दैट टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका ये जो डिराइव डिराइव हुई होगी वो वेक्टर प्रोडक्ट से हुई होगी. ये स्केलर प्रोडक्ट से डिराइव नहीं हुई होगी. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? Yes. Now, before I go further, because you might have this confusion, मैं ये in this lecture we will be focusing only on the scalar product. So don't worry, vector product हम नहीं करने वाले. But there might be a doubt in your brain कि only this is what we will be focusing on. But there might be a doubt in your brain कि यार ये जो torque है, इसको टाउ, ग्रीक सिंबल टाउ है, और यूजुअली इसको टॉर्क के लिए यूज किया जाता है. नाउ आई जस्ट स्पेंड ओनली अ मिनट ऑन दिस बिकॉज मेरा लेक्चर टॉर्क के बारे में नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू 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 टेल यू दिस कि ये टॉर्क होता क्या है. ये आपने क्लास 10th में किया था. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज अ डोर, ये हिंज था, ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर कि आप अगर ये हैंडल है, सो इफ यू रिमेंबर देयर इज समथिंग दैट यू डिड इन क्लास 10th आईसीएसई फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने ये किया था कि ये यहाँ पर फोर्स लगेगी एंड दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द हिंज. डू यू रिमेंबर दिस? ये भूल गए? Wait, wait. Yes, yes. I'll remember. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. दिस वॉज आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 1 एंड दिस वॉज डिफाइंड एज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. याद आया? इसका एक और भाई भी आपने किया था, अगेन इफ यू रिमेंबर, तो ठीक है, चलेगा. नहीं चले, नहीं याद तो भी चलेगा. देन देयर वाज दिस मूवमेंट. मूवमेंट में देयर वर पैरेलल फोर्सेस. एक फोर्स ये थी, दूसरी फोर्स ये थी. सो मूवमेंट को डिफाइन करते हैं फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ध्रुति, डू यू रिमेंबर? Yeah. तो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल सेंड यू द स्कैन, बिकॉज जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आई शो यू, आई सेंड यू द स्कैन ऑफ दैट क्लास 10th का चैप्टर, क्लास 10th आईसीएससीआई सलीना का पेजेस, सो दैट जब हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करें तो आपको याद हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो आप क्लास 10th में आपने की हुई है वो आपको याद रहे. आर वी क्लियर टिल हियर? Yeah. ओके. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिया जाता है. ओके.
So the easiest example of scalar product is work is equal to force dot d. अब I'll give you a small example कैसे ये लिया जाता है, and then we'll do some थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद then we'll start discussing the details of the scalar product. So for example, if I have a vector force 3i plus j minus k, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है d, ये है i minus j plus k, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, इसको करने के दो मेथड है। एक जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है एफ टी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डी, एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द एंगल cos of the angle between these two. Have I made myself clear? Yes. भाई से भी समझ आया? जी. There is another way in which the dot product. I'll keep saying dot or scalar. Don't mind. कभी मैं dot बोलता रहूँगा, कभी scalar बोलता रहूँगा. You have to understand they are one and the same thing. Now this is the first formula. This is the first formula. Then there is another formula. There is a second formula. Second formula में ऐसा करते हैं, and of course we'll do examples and you will understand कि यार ये first formula कब use करना है और second formula कब use करना है. That you will understand. Don't worry. आज का lecture में we'll be doing lot of practice, so don't worry about it. The second formula is that I take this f dot d, और मुझे सिर्फ ये करना है, ये वाले 3 को ये वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 को ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. I'll show you how. So 3 into 1 is 3, 1 into -1 is -1, -1 into 1 is 1. Dhruti, have I made myself clear? Yes. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3. और क्योंकि ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है, देखिए नंबर आ गया 3, और ये जो 3 है इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि वर्क है तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? जूल. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? एक क्वेश्चन है जी सर. सो we're supposed to multiply the. नहीं, I am not understanding how you solved it. Yeah, don't worry. I'll be solving a lot of examples. Don't worry about it. Okay. Okay. अभी केसेस देखना शुरू करते हैं. So for example, I am given a case. I am given a case like this कि मेरे पास ये बॉल है, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, इस पे ये फोर्स लग रही है यहाँ पर 5 न्यूटन की, एंड ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इसकी होने वाली है वो होने वाली है 5 मीटर. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? एनी डाउट टिल? No. ओके. तो इसमें यू नो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वर्क इज एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू. एक फॉर्मूला तो सर ने ये बताया था, और दूसरा फॉर्मूला बताया था कि यार ऐसा करना कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो आई का नंबर आई के नंबर से, जे का नंबर जे के नंबर से, के का नंबर के के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है जिसमें यहां पर मैग्नीट्यूड दिए जा रहे हैं फोर्स के, और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली. सो यू विल से 5 multiplied by 5 multiplied by cos of the angle between the force and the displacement. Dhruti, have I made myself clear? Yeah. हाँ, एक क्वेश्चन है कि if work is supposed to be a scalar quantity, then why are we taking considering the angle? Yeah, again beautiful question. आप ये जो cos 60 है, इसका cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर ही आएगा. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ओके सर. तो इट वुड बी अ नंबर इनटू अ नंबर इनटू अ नंबर
which will be a number which is a scalar quantity. Have I made myself clear? Correct. Correct. And you know, if I go deeper into your problem, इस जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लास्ट लेक्चर की डिस्कशन में है. देखिए, दिस इज अ फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये सारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सारा Yeah. फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है. बट जब वो एंगल पे है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की एंगल पे है, तो फोर्स का पूरा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की साइड में नहीं जा रहा. एफ का सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट ये बाजू जा रहा है, और जो एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट, एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, वो तो वेस्ट हो रहा है. मेरी बात नहीं समझ आ रही? Yes. I'll give you an example. Let me give you another example. So, for example, आपके Zoom days मतलब जब आपका कोविड के टाइम आपकी Zoom पे क्लासेस होती थी. Do you remember स्कूल क्लासेस? Yes. Yes. अभी आपके इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे कि अगर टीचर इस साइड पढ़ा रही है तो स्टूडेंट का पूरा फोकस इसी साइड होता था. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Correct. बट मोस्ट ऑफ द क्लास के साथ यार ऐसा तो होता नहीं था. जो टीचर है वो ये बाजू पढ़ाती थी और जो स्टूडेंट है वो ये बाजू देख रहा होता था. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? हाँ, करेक्ट. अभी स्टूडेंट ने जूम की क्लास भी खोली हुई है और लैपटॉप पे कोई 2-3 एप्लीकेशंस खोले हुए हैं और मोबाइल भी चेक कर रहा है. तो उसका पूरा फोकस थोड़ी है टीचर की तरफ. उसका तो देयर इज ओनली अ पार्ट फोकस. ये वाला जो पार्ट है ये टीचर की तरफ है, ये वाला जो पार्ट है ये तो मोबाइल की तरफ या एप्लीकेशंस की तरफ, उसकी तरफ है. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes. तो यहाँ पर ये स्टूडेंट और टीचर जब दोनों एक साइड पे हैं तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे. और जो स्टूडेंट अपना जूम देख रहा है, 2-3 एप्लीकेशन खोल के रखा है, उसका तो पूरा का ध्यान है ही नहीं ना. उसका सिर्फ ओनली पार्ट इज टुवर्ड्स दिस साइड. हैव आई मेड माई Yes. सेल्फ क्लियर? तो Yes. आपको समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा डी. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की साइड पे है, सिर्फ वही काम कर रहा है. तो ये जो 5 न्यूटन है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, मतलब 5 cos 60, सिर्फ यही काम कर रहा है. इसका जो 5 sin 60 वाला कंपोनेंट है वो तो वेस्ट जा रहा है. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes. आपको समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. बट द ओनली थिंग नहीं, इज, understood. द ओनली way of अंडरस्टैंडिंग इज कि ये वेक्टर ए है एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी. अभी हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कि ए का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ए को आप ब्रेक कर सकते हैं ना यार. मैं आपको वेक्टर में हमने काफी प्रैक्टिस की है, रेजोल्यूशन और हाँ, वेक्टर. हाँ. तो ए का सिर्फ cos थीटा वाला फंक्शन, ये वाला, ये ए cos थीटा वाला कंपोनेंट सिर्फ बी की डायरेक्शन में है. तो डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ ए cos थीटा इंटू बी करते हैं. ये जो ए साइन थीटा है ये वेस्ट जाता है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. भाई से भी समझ आ रहा है? जी. So this is what happens in a dot product. Is Ruti any doubt till here? No, sir. Okay. तो ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ था. Have I made myself clear? Yes. Okay.